Within 5 minutes, we'll be starting up with the program. One of the speaker is about to come. As soon as he come, we will start up.
friends. We are living in a country of taxes. So many taxes are there and so many compliances are there. And the government is getting very proactive nowadays. In order to plug the loopholes, they are changing the law very fast. Rather, before the fashion changes, the law keeps on changing nowadays. It is practically difficult for even we professionals to keep updated about the changing laws. What about the taxpayer, tax practitioners, all apart. दी छोटी छोटी बातें, एक ये प्रोग्राम था, इसी कॉन्सेप्ट से डिजाइन किया था कि इतने सारे कानून है, उसमें इतने फास्ट चेंजेस होते हैं, तो क्या क्या चेंजेस हुए, उसमें क्या अपडेशंस आए हैं. ऑल द टैक्सपेयर्स, ऑल द पब्लिक एट लार्ज शुड कम टू नो अबाउट द चेंजेस. दिस प्रोग्राम इज डिजाइन एक्सक्लूसिवली के 1-1.5 घंटे के समय में, अंदाज 2 घंटे के अंदर में पूरा अवेयरनेस क्रिएट हो पाए कि क्या लेटेस्ट चेंजेस है. और चेंजेस में इतने सारे चेंजेस रहते हैं कि यू नीड टू नो द लॉ, व्हाट आर द चेंजेस इन द लॉ, एंड देन most of the time also you have to forget the law also, क्योंकि चेंजेस हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं लॉ, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट कि वो वाले पुराने प्रिंसिपल्स, पुरानी चीजें ख्याल में रहती है और वो ज्यादा तकलीफ दे देती है. तो ये कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी बातें, ये VIA टैक्स फोरम ने ये प्रोग्राम डिजाइन किया था. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म दिस इज द 6th ईयर ऑफ द प्रोग्राम by Vidarbha Industries Association Tax Forum and the Vidarbha Tax Practitioners Association. This program was possible with the help of this eminent speaker, eminent knowledge bank with us in the form of these speakers. To cover the income tax, we have a very dynamic person, a cool and calm, who is the past chairman of the Nagpur branch and the chairman, one of the youngest chairman of the Nagpur Nagrik Sehkari Bank, past chairman of the Nagpur Nagrik Sehkari Bank, CA Rajesh Ji Loya. I would request CA Ashok Ji Chandak to please welcome him by offering a floral bouquet. To cover the sale tax, we have another a very down-to-earth personality who is the past president of the Vidarbha Tax Practitioners Association also, CA Shailendra Ji Jain. I would request the president VTPA, Sri Narendra Ji Jha, to please welcome him by offering a floral bouquet. To cover the complicated topic of service tax and excise, we have a young and a dynamic personality in the form of CA Varun Vijayvargiya Ji. I would request Secretary VTPA, Sri Mahesh Ji Muttar, to please welcome him by offering a floral bouquet. Friends, on behalf of VIA and VTPA, I would request an authority in indirect tax, CA Ashok Ji Chandak, for his welcome address. President of Vidarbha Tax Practitioners Association, Sri Narendra Shah, Convener of VIA Tax Forum, Mr. Naresh Jakutia, learned faculties for today, Mr. Rajesh Loya, Mr. Shailendra Jain, and Mr. Vijayvargiya, dear members, professionals, and I see some of my colleagues as well, so my colleagues. As rightly pointed out by Naresh, VIA Taxation Forum was started about 8-9 years back with a simple idea that changes goes on coming, and with those changes it becomes difficult for everyone to keep track. Therefore, nearer to year end, maybe 2 months, 3 months earlier, 4 months earlier to an year end, organize some kind of a program which will give you a glimpse of current year's provision, the provisions which are applicable for the current year. He pointed out that the law is changing very fast. Yes, notifications goes on coming.
and possibly from 1st of January itself, you will have to observe new provisions relating to PAN and TDS and all. Sales tax law is also the same. Same is the case with the excise. The only objective of this forum is to keep you abreast of certain provision. Thereafter, because of today's discussion or deliberation, something arose in your mind, go consult your counsel and take an appropriate decision. Let me tell you, friend, that this is not a forum to clarify your expert, to give you an expert opinion, though we have a very expert faculties today. But the idea is to give you the glimpse of the provision. Because if somebody raises a point and he wants an expert opinion, others will not get a benefit of that because he will be raising his own point. So objective of the forum or objective of program is to give you something which is very, very relevant. Choti बातें is a name given by टैक्सेशन फोरम. कारण यही है उसका कि हम जब डे टू डे काम करते हैं तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें रहती है. कोई छोटी चीज अगर हम भूल जाते हैं तो उसके बहुत सारे परिणाम हमको उल्टे तिल्टे भुगतने पड़ते हैं. तो एक छोटा सा अगर किसी का पैन नंबर लेना भूल गए आप, तो हो सकता है आपको पेनल्टी लंबी लग जाए. आपने आपके ऑडिट रिपोर्ट के टाइम पे J2 के अंदर में प्रॉपरली परचेसर का आपका टिन नंबर नहीं प्रॉपरली भरा, तो हो सकता है आपका वैट का ITC क्रेडिट डिसअलाइव हो जाए. आपने प्रॉपर आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया तो सर्विस टैक्स और एक्साइज के अंदर में आपको और प्रॉब्लम हो सकती है. तो टैक्सेशन से रिलेटेड तो ये छोटी छोटी बातें जरूर हैं और ये सारी छोटी छोटी बातें आपको हमारा एक्सपर्ट पैनल बताएगा. एक या दो चीजें मैं बताना चाहता हूं आपसे और आपसे डिस्कस करना चाहता हूं. आज कंप्यूटर का जमाना है, हर चीज ऑनलाइन है और हर चीज ऑनलाइन करने के टाइम पे हम जो देख रहे हैं मिस्टेक्स, जो कॉमन मिस्टेक्स होती है वो ऐसी होती है कि पहले ऑफलाइन हम डाटा तैयार करते हैं, चाहे एक्सेल शीट में करिए चाहे काय में भी करिए, जो भी करना है डाटा शीट में तैयार करते हैं और फिर उसको अपलोड करते हैं. अब हमारी मेहनत बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर में, मतलब सभी हम, मतलब आपके अकाउंटेंट भी हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो गए और आप लोग भी हो गए, जो भी खुद ही हो, पिछले साल का जो डाटा शीट है उसको वैसे की वैसे उठाते हैं, उसके ऊपर में कट पेस्ट कर देते हैं और वो कट पेस्ट के चक्कर में कोई चीज ऐसी छूट जाती है, कोई चीज ऐड हो जाती है, वो आपको बहुत तकलीफ देती है. एग्जाम्पल ऐसा है कि भाई कोई आप जिसका खरीदार है, किसकी प्रोप्राइटरी कंसर्न का नंबर चेंज होके आपके पार्टनरशिप कंसर्न हो गई हो, तो उसका वैट नंबर चेंज हो जाएगा पर आपके रिकॉर्ड में वही पुराना वैट नंबर चलेगा, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. टीडीएस का रिटर्न आप फाइल करते समय वही करेंगे कि सामने वाले का प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप हो गई या कुछ हो गया तो टीडीएस नंबर चेंज हो गया. टीडीएस नंबर चेंज हो गया तो आपने वो पुरानी शीट उठाई है, उसमें से आपने कर लिए, नाम चेंज होता है तो ऐसे. तो पुरानी कहावत है कि कॉपी करने के लिए भी अकल चाहिए. तो whenever you do the cut paste work, please ensure that the things are done in a proper fashion. बहुत छोटी चीज है ये, बहुत छोटी चीज है, तो ये बहुत तकलीफ देती है कई बार. कभी कोई लाइन अगर कट पेस्ट में आप डिलीट करना भूल गए, वो लाइन को पकड़ के आपकी इनकम टैक्स की स्क्रूटिनी हो सकती है, या कोई सेल्स टैक्स का स्क्रूटनी होगा, या एक्साइज वाले आपके यहाँ पे रेड करने पहुंच जाएंगे. सारी चीजें ऑनलाइन हो गई अभी, तो ऑनलाइन के लिए आपको काफी कुछ ख्याल रखना है, काफी कुछ कंट्रोल करना है. और एक दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि एज पर एज पॉसिबल आपका पासवर्ड आईडी किसी को मत दीजिए. मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर आपका काउंसिल भी मांगता है तो उसके सामने बैठिए, मैं बोलना मेरी साइट खोल देता हूँ, पासवर्ड आईडी मैं ही खुद डाल के दूंगा. ये दो चीजें मैं स्पेशली आपको बताना चाहता था.
उसके बाद हम सुनेंगे एक्सपर्ट पैनल से, आपकी कुछ शंकाओं का निवारण भी करने की कोशिश करेंगे। जो जनरल टाइप के सवाल हैं, जो जनरल टाइप की शंका है, उसका जरूर हम निवारण करने की कोशिश करेंगे। स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो हिंट ले लीजिए, यहाँ से आपके काउंसिल से जाके पूछिएगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच फॉर योर। थैंक यू चेयरमैन सर। फ्रेंड्स, एक रॉन्ग नोशन है, हम लोगों ने जानबूझ के ये वाला जो फॉर्मल पार्ट है बहुत कम से कम समय का रखा है ताकि हम लोग वी कैन यूटिलाइज द टाइम ऑफ द स्पीकर ऑन दिस फोरम। एक मिसकंसेप्शन है इनकम टैक्स के बारे में कि इनकम टैक्स के लिए इनकम होना जरूरी है। इट्स अ रॉन्ग नोशन। अब नए इतने सारे बदलाव आए, राजेश भी अपने पार्ट में कवर कर पाएंगे उसको ज्यादा अच्छे से, कि इनकम टैक्स लेने के लिए इनकम होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं बिना इनकम के भी इनकम टैक्स लिए जा सकते हैं। और दूसरा बदलाव, ऑल दी स्पीकर्स इन देयर पार्ट दे कैन कवर अप, कि शायद आपके बारे में आपको भी उतनी जानकारी नहीं होगी जितने अब टैक्स डिपार्टमेंट के पास में वो जानकारी है। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस है, कैसे कंट्रोल हो रही है सब चीजें, वी हैव अ गैलेक्सी ऑफ स्पीकर विथ अस टू कवर द इनकम टैक्स। आई वुड रिक्वेस्ट CA Rajesh Loya for his presentation. Past President of the Institute of Chartered Accountants and the Chairman of the VIA Tax Forum, Shri Ashok Ji Chandak, President of the VTPA, Shri Narendra Bhai Jha, my other panel speakers, Mr. Vijay Varghia, Mr. Shailen Jain, convener Naresh, and dear friends. At the outset, I would like to catch the line which Naresh has just uttered. In the introductory remarks, he said that you need to upgrade your knowledge time and again and keep yourself abreast of the changes. Whatever changes that are coming, they are large in numbers but very complicated, having good effect on your taxation. You need to keep yourself abreast. You need to keep changing also. But I should correct Naresh on one point. Not only the knowledge needs to be updated. सिर्फ knowledge update करने से मुझे लगता है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, हम अभी इंडस्ट्रियलिस्ट और उनको जो सहयोग करते हैं उनके एंटरप्रेन्योरशिप में, ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं। नॉलेज तो किताबों से ढूंढ के काउंसिल के साथ बैठ के चेंज हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि स्वभाव बदले। यदि स्वभाव आपका वही रहा जो अभी तक था, शायद थोड़ा सा मेटिकुलस वर्किंग का नहीं है, थोड़ा से केयरलेस भी है, चलता है, एटीट्यूड है, नॉलेज अपने को क्या जरूरत है, कि तो अपना छोटा बिजनेस है, ये जो स्वभाव है, ये यदि स्वभाव यदि बदले तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो फिर जो नरेश ने आखिरी में भी कहा जाते जाते कि इनकम टैक्स ये इनकम पर है, इस भ्रम में आप मना रहे। इनकम टैक्स जो लगता है वो सिर्फ इनकम पे लगता है। मुझे मेरे क्लाइंट बहुत सी बार पूछते हैं कि भाई ये इनकम टैक्स का रेट क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स। यदि इनकम 10 लाख की हुई तो मुझे कितना टैक्स लगेगा। तो ना तेरे स्वभाव पे डिपेंड करेगा, ये इनकम टैक्स का रेट मत देख तू। तो बोले क्यों सर, ऐसी क्या बात है। बोले एडवांस टैक्स आपको 15 दिसंबर को, 15 जून को, 15 सितंबर को, 15 मार्च को आपको भरना था, आपका स्वभाव ही नहीं है भरने का। तो टैक्स का रेट क्या हुआ। टैक्स का रेट वो नहीं है। आपको जब चेक फाड़ने की बारी आएगी कि 10 लाख रुपए की इनकम हुई है और 2 लाख रुपए का टैक्स रेडी रकम में लिखा है, तो आपके 2 लाख के चेक से होगा क्या। नहीं, आप केयरलेस है, तो आपको 2,20,000 तो कम से कम भरने पड़ेंगे, क्योंकि आपका स्वभाव ही नहीं है समय से टैक्स भरने का। फिर दूसरा, आपकी वर्किंग। आप जो बही खाते लिखते हैं साल भर में,
उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते। जो फिगर जैसा निकला उसको वैसा आगे बढ़ाते गए। टीडीएस जिस पे काटना चाहिए उस पे काटा नहीं, और जिस पे नहीं काटना चाहिए उस पे काटते चले गए, रेट बदल दिया। आपकी वर्किंग ऐसी है तो आपने जिस पे टीडीएस नहीं काटा, ऐसा खर्चा आपका डिसअलाउ होने वाला है। वो कितना होगा? तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए आपने एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा किया है। आपको लगा कि इस पे कोई टीडीएस नहीं है और आपने नहीं काटा। और अभी लेटेस्ट में तो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका टीडीएस काटना था। आप पुराने जमाने में रहे, काउंसिल्स को याद ही नहीं करते। तो वो 10-1 लाख रुपए का वो डिसअलाउंस है, तो 10 और 5 15 लाख डिसअलाउ होगा, 30% 4.5 लाख, तो 2,20,000 प्लस 4.5 लाख 6,70,000 हो गए। आपने फैक्ट्री है, जो खर्चे आपने कैपिटलाइज करने चाहिए थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिए। जिद भी कर रहे कि भाई ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, समझने के लिए तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, असेसमेंट हुआ, फिर टैक्स ठुका। तो 10 लाख की इनकम पे 10 लाख का टैक्स हो जाए तो कोई नई बात नहीं है। और आपका चेहरा यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पसंद नहीं आए तो 10 लाख रुपए का टैक्स और 10 लाख रुपए की पेनल्टी, क्या फर्क पड़ता है? तो मुझे लगता है कि लॉ जैसे जैसे चेंज होते जा रहे हैं, हमारा बिजनेस जैसा जैसा चेंज होते जा रहा है, हमने अपना स्वभाव बदलने की जरूरत है। बहुत सी बार मैंने देखा है कि जिसको पिग्मी डिपॉजिट करने की आदत होती है, छोटी सी दुकान होती है, रोज 10 रुपया पिग्मी डिपॉजिट में देते हैं। 2 साल में थोड़ी सी कमाई बढ़ी तो 50 रुपये कर दिया, लेकिन पिग्मी डिपॉजिट में। और कमाई बढ़ी तो 500 रुपये पर डे कर दिया, लेकिन आदत पिग्मी डिपॉजिट की रखी। बड़ी दुकान हो गई, 1000 रुपया रोज लेके जा भाई। बाद में मालूम पड़ता है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में अब नोटिस देने लग गए कि भाई तुम्हारे यहाँ कौन कौन पिग्मी डिपॉजिट जमा करता जरा बताएं, तो मालूम पड़ा कि ये हमारे महोदय जो है ये 1000 रुपया पर डे पिग्मी डिपॉजिट, उनके लिए तो पिग्मी डिपॉजिट था मेरी छोटी सी बचत। जो मैंने 10 रुपए से शुरुआत की थी, आज 1000 रुपये कर रहा हूँ, 30,000 रुपये महीना, साल का 3,60,000 रुपया। इनकम बताई 2.5 लाख रुपए का टैक्स एग्जम्पशन है, 3 लाख रुपए बता दी इनकम। अब खाना पीना बाकी सब जो चीजें हैं वो सब जोड़ते जाएं तो जितनी उसकी इनकम नहीं होगी उससे ज्यादा टैक्स होगा। इसीलिए स्वभाव जब तक नहीं बदलेंगे, मुझे लगता है कि छोटी छोटी बात जरूर है। और ये छोटी बात पे से तो मुझे बड़ी कभी कभी हंसी आती है जब क्लाइंट का फोन आता है, सर एक छोटा सा काम था। क्या काम था भाई? तो एक 5 मिनट के लिए आ जाऊं क्या? नहीं, आज मुझे भी कोर्ट जाना है। छोटी सी बात है सर, मैं 2 मिनट के लिए आ जाता हूँ, हो जाएगा काम। अच्छा ठीक है, आ जाओ। आ गए सर, वो अपना एक प्लॉट था ना, 2 साल अपने कुछ दिन पहले लिया था, वो मैंने बेच दिया। छोटा सा ही प्लॉट था। इन उनको लगता है कि कुछ बड़ा बता दिया तो वकील साहब का बिल तो बड़ा नहीं हो जाएगा, तो छोटा सा ही प्लॉट था, वो मैंने बेच दिया है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उस पर टैक्स कितना लगेगा? तो मतलब प्लॉट जो बेचा है, जो यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि कंप्यूट होता है तो 20% हो जाएगा, नहीं तो 30% लगेगा जो प्रॉफिट होगा उस पर। ठीक है, कोई बात नहीं। बोले नहीं, बोले सर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो तो मतलब कितना 1 साल का होता है ना आपका? मतलब किसने बताया तुमको? बोले सर शेयर में तो पिछला बार आपने समझाया था। तो मैं बोला नहीं, प्रॉपर्टी बेचे हो तो 3 साल कम से कम। तो बोले सर मेरा तो कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं हुआ है, अपने 3 साल यानी 36 महीने होते हैं ना। हाँ, मेरे 35 महीने ही हुए हैं, मैंने बेचा है तो 1 आध महीना तो चल जाएगा ना। अब छोटी सी बात कि 1 आध महीना तो चल जाएगा ना। फिर मैंने कहा कि तुम्हारा प्लॉट जो छोटा सा बिका कितने में? तो मालूम पता है 5 करोड़ में बिका हुआ है। मतलब शाबाश, छोटी सी बात है। तो छोटी छोटी बात यहीं तक सीमित रखना। क्लाइंट कभी भी इस मन में ना मत में ना आ जाए कि मेरी बात बहुत छोटी है। और हाइट कब होती है? यानी ये देखिए, आपकी 1 महीना पहले प्लॉट बेच दिया तो ही इज लूजिंग 10% ऑफ द कैपिटल गेन्स, 10% ऑफ द रादर प्रॉपर्टी वैल्यू इटसेल्फ, क्योंकि प्रॉपर्टी जब लेते हैं तो बहुत कम की होती है, बढ़ती एकदम बहुत ज्यादा है। तो जो भी कैपिटल गेन है उसका 10% ही इज पेइंग एक्स्ट्रा, जस्ट बिकॉज एक छोटी सी बात कि डिडंट टेक केयर कि भाई 3 साल हो जाते, थोड़ा सा 5-10 दिन का और ग्रेस करके फिर रजिस्ट्री कर लेते। नहीं किया, वो छोड़िए। सर्वे होता है क्लाइंट के यहाँ पे, बात होती है कुछ मिला अपने यहाँ पर? नहीं सर कुछ भी नहीं मिला, कोई विशेष ऐसा नहीं, मैंने स्टॉक चेक करा दिया,
मैंने कैश चेक करा दी, मेरी बुक्स पूरी टैली थी, बैलेंस शीट पूरी पिछले साल की उनके सामने रख दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ छोटा सा प्रॉब्लम आया है। क्या प्रॉब्लम आ गया भाई? एक छोटी सी चिट पकड़ में आ गई। अब छोटी सी चिट है उसकी, मतलब ठीक है छोटी सी चिट है तो खा जाते उसी वक्त, उसको हाथ में क्यों दिया? और मेरे क्लाइंट ने खाया भी है। यस, इट्स अ फैक्ट। मेरे क्लाइंट ने जब छोटी सी, उसको मालूम है कि कोई चीज छोटी नहीं होती। मेरा कहना है कि स्वभाव बदलने की बात है। उसको समझ में आ गया कि ये जो कागज है ये इतना छोटा है, लेकिन ये छोटा नहीं है, इट हैज गॉट इट्स ओन कॉस्ट। उसने क्या किया, नागपुर की बात कह रहा हूं मैं, ताकत चाहिए उसके लिए। वो चिट उनके पास थी, रादर आधा पेज ही था, एओ के पास में। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी जेब से निकला, ये बाद में समझाएंगे। दिन भर तक पूरा चलते रहा, इनको भी थोड़ा सा लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। जब वो आखिरी जो तुरुप का इक्का चलाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, यहाँ कोई पत्रकार यदि बैठे हो तो मेरे कमेंट्स को थोड़ा सा डाइल्यूट करके लिखे जरूर, डर किसी बात का नहीं, लेकिन डाइल्यूट करके लिखे। तो वो उन्होंने जब दिखाया दूर से कि ये देखो इसमें जो लिखा हुआ है वो सारा आपके हाथ से लिखा हुआ, हाँ साहब मेरे हाथ से लिखा हुआ है, तो ये क्या है ये? तो बोले साहब मैंने हिसाब लिखा होगा तो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। तो नहीं ऐसे देख के बताओ। बोले साहब तो बूढ़ा हो गया हूँ, दिखता नहीं है, आप हाथ में दे दो। देखा, साहब ये तो मेरा हिसाब है। बोले साहब पन्ने में खा गए, कुछ नहीं कर पाया कोई। ऑफिस में करने के बाद आया हमारे, हमने कहा यहाँ तक जो आदमी सब कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, तो अब इनकम टैक्स भी आप भी जाओ और उनको फेस करो। उसने कहा इनकम टैक्स में, सर मैं तो यदि चिट्ठा आपके हाथ में लग जाती तो मर जाता साहब। बोले मैं जिंदा हूं तो कम से कम आपको कमा के टैक्स देते रहूंगा। तो दैट वाज हिज आउटलुक। बात छोटी सी है कि आपने आज के इस मतलब माहौल में, जैसा कि अपने आदरणीय चांडक जी ने कहा कि आपको छोटी सी बात क्यों न हो, कोट करना हो पेन नंबर या कुछ भी, तो थोड़ा सा डिलीजेंट रहना पड़ेगा। जस्ट कॉपी करना, नकल करना और बिना अकल के करना, उसको टालना होगा। सर्वेज, अब चूंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत रियायत दे रहा है, ओनली 3% केसेस आर सिलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी, यानी हम यहाँ जितने बैठे हैं उसमें से सिर्फ 6 लोग इनका रिटर्न इसमें आता है स्क्रूटनी में, असेसमेंट के लिए आपको बुलाया जाता है। बाकी पूरे 194 लोग जो हैं उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2 साल, 5 साल, 10 साल तक जाने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो सर्वे करेंगे। अब ये जो सर्वे है इसमें वो फॉर्मूला काम आता है डिपार्टमेंट को कि वो इनकम पे टैक्स न लेते हुए आपकी बेवकूफी का टैक्स, कि आप कितने, सॉरी टू अटर दैट वर्ड चांडक जी, लेकिन जल्दी समझ में आ जाता है हम लोगों को ये सब एक शब्द बोलने से। तो और मैं क्लाइंट को कहता भी हूँ कि ये तेरे बेवकूफी का टैक्स है। कैसा? तो छोटी सी बात है, न्यू ईयर सामने ही है, एक दिन बाद में नई डायरियां जो है आपस में आदान प्रदान होगा। मुझे लगता है कि जो व्यापारी भाई हमारे हैं, जो उनके यहाँ पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं या और भी जो भी इंचार्ज हैं उसके, उन्होंने डायरी का आदान प्रदान जो करना है वो कितनी करना, तो इट्स अ नॉर्मल प्रिजम्पशन, नॉर्मल रिचुअल